Good evening, students. We'll start the same our lecture number 3. It's very simple again. Topic of physics motion. We'll discuss what point we have to learn today. Today we have to discuss about this. What is the speed? What is the velocity? In previous class we already discussed about the distance and displacement. And distance or displacement देख चुके हैं. Now just is related with the time also. Now the speed and velocity. What is speed? Speed is the ratio of distance by time by, and velocity displacement by displacement and time. These are the speed and the basic difference. Actually speed is a scalar one and velocity is a vector. The average speed and average velocity. When the some circumstances are there, we are going from one place to other place by stopping, we are to finding the average speed. There are some conditions are there, we will find out. Uniform and non-uniform motions, the different types of the motions are there. And acceleration and retardation is also known as negative acceleration or retardations or deacceleration, the same things. That points we have to discuss today. Now here the given the definition, what is the speed and what is the velocity. Difference निकालना है आपको, क्या speed है और क्या velocity है. Very first point, speed is rate of change of displacement. Very good. Speed and velocity. Speed is the first one, scalar. Speed क्या होता है? Scalar. Speed को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. Vector is a, velocity is a वेक्टर क्वांटिटी है ना. और क्या है? स्पीड इज अ पाथ डिपेंडेंट. स्पीड को क्या लगेगा? पाथ, जैसे आपका पूरे जा रहे हैं आप. स्पीड इज अ पाथ डिपेंडेंट एंड वेलोसिटी इज पाथ इंडिपेंडेंट. वेलोसिटी कोई पाथ का कोई लेना देना नहीं है. वेलोसिटी इज ओनली डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. स्पीड इज डिपेंड अपॉन टोटल पाथ. समझ में आ रहा है? In case of magnitude, magnitude of the speed is always greater or equal to the magnitude of the speed. Velocity के बारे में बोला तो magnitude of the velocity is always less than or equal to the magnitude of the speed. Velocity का magnitude क्या होगा? कम होगा. Speed is never negative. Speed negative होगी क्या? नहीं. But velocity may be negative, positive or sometime zero also. These are the basic difference related to speed and velocity. Here depending upon that some numericals or examples are there and we have to identify which one is a greater or which one is small. आपको देखना है कौन सी बड़ी. तो how to find? Here given the speed of the bicycle comma car and bus are given in a 18 km per hour, 7 km per hour, 0.5 km per minute respectively. Which of one of these three are the fastest and one is the slowest? इसमें से कौन सी फास्ट कौन सी है और कौन सी स्लो है निकालना है. तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? सबसे पहले कन्वर्शन सब एक यूनिट में लिखना है. जो भी आपने को निकालना आसान होगा. नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ पे सिंपल दिखा सर बाइसिकल स्लो जाएगी, कार फास्ट जाएगी. ये एनालाइज लॉजिकल आंसर देना नहीं है अपने को. बराबर है? तो क्या है यहाँ पे किसके बारे में? बाइसिकल के बारे में बोला. बराबर है? बाइसिकल क्या बोल रहा है? 18 किलोमीटर पर. ये कौन है तुम्हारी? बाइसिकल के बारे में बता रहे हैं. और कुछ के बारे में बता रहे हैं. कार के बारे में. कार कितनी जा रही है तुम्हारी? 7 मीटर पर सेकंड. और दूसरा कौन है ऑब्जेक्ट? बस. बस कैसे जा रही है आपकी? 0.5 किलोमीटर पर मिनट. तो क्या करना है? सभी को एक इसमें कन्वर्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि मीटर पर सेकंड में. देखिए तो अभी क्या है? 18 किलोमीटर यानी कितने मीटर हो गए? 18,000. पता है आपको 1 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. और 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते हैं? 3600 सेकंड. एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 एंड 1 मिनट 60. ये कन्वर्शन पता है आपको. बराबर? देखिए तो अभी टाइम जो है आवर्स में, तो क्या करना है आपको? सेकंड में करना है. तो कितने आएंगे? डिवाइडेड बाय 3600.
तो क्या होगा बस की स्पीड स्पीड क्या होगी तुम्हारी 0.5 मीटर पर आ गई तुम्हारी बाइसिकल की स्पीड। समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, कार का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया आपने को 7 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में, इसको अपन कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे करना है बस की स्पीड। बस की स्पीड क्या दिया आपने को इन्होंने 0.5 किलोमीटर। वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000 एंड टाइम गिवन हियर इन अ मिनट्स। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 60 इट विल बी कन्वर्ट इन अ सेकंड। तो क्या हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60, है ना? तो ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। तो कितना होगा 500 डिवाइडिंग बाय 00 कैंसिल, तो 6 हाँ कितना आएगा 8.3 मीटर पर सेकंड। तो आप एनालाइज कर सकते हैं। देखो तो इसमें सबसे स्पीड किसकी कम है तुम्हारी, बाइसिकल की स्पीड कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड, कार की 7 मीटर पर सेकंड, और तुम्हारी बस की कितनी है 8.3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, स्लोएस्ट कौन है तुम्हारी, साइकिल स्लोएस्ट है, और ये क्या है तुम्हारा, समझ में आ गया है? देखिए नेक्स्ट वन देखिए, उसके बाद में देखिए a body is moving with a uniform velocity of 20 meter per second after 10 second what is the velocity would be। तो उसके बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बोलिए? हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली। क्या बता, क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अभी भी उतनी है, बाद में भी उतनी ही होगी। तो आफ्टर 10 सेकंड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, तो पहले 20 थी, तो आफ्टर 10 मिनट्स भी 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया ये? बिकॉज क्या रीजन क्या है इसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो नेक्स्ट वाला क्या है, अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दिया है, ट्रेन की स्पीड क्या है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 14 सेकंड्स एंड क्रॉसेज द ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, आपको निकालना है ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ आपको पता है क्या? नहीं, लेट मी कंसीडर द लेंथ ऑफ द ट्रेन विद एक्स, है ना? ये ब्रिज सपोज ब्रिज कितना दिया आपको 100 मीटर का ब्रिज है सपोज, ये कंसीडर करेंगे आपको। ये क्या है तुम्हारा ब्रिज है, और ये तुम्हारी ऊपर से उसकी जाने वाली क्या है तुम्हारी ये ट्रेन। इसकी हाइट आपने को पता, लेंथ पता नहीं है आपने को। लेट मी कंसीडर द लेंथ ऑफ द ट्रेन विद एक्स। टाइम कितना ले रहा है तुम्हारा, यहां से यहां तक ट्रेन जा रही, तो टाइम कितना ले रहा है आपका 14 सेकंड दे रहा है, बराबर है। और उसकी स्पीड कितना दिया आपकी ट्रेन की 36 किलोमीटर पर आवर। देखो टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया है और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है आवर्स में। पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर पर सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसा करोगे आप, स्पीड यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, 18 टू 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है? स्पीड कितनी आ गई, सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करेक्ट है? तो डिस्टेंस स्पीड कितना है आपकी 10, टाइम कितना है 14। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है आपका 140। तो यहां पे 140 टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये ब्रिज प्लस ट्रेन का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा ट्रेन का, तो ये क्या डिस्टेंस टोटल है तुम्हारा x प्लस ब्रिज का डिस्टेंस। ब्रिज का डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने आपने को 100, तो x ये ट्रेन का डिस्टेंस है, यहाँ पे 100 इक्वल्स टू 140। तो डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, डिस्टेंस कितना आ गया इक्वल्स टू 40 मीटर। ट्रेन की डिस्टेंस कितना होगा आपका 40 मीटर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, यहां पे एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अभी एवरेज वेलोसिटी कब निकालता है, जब कोई कंडीशंस में है ना, अभी कोई सपोज ऑब्जेक्ट फॉर इक्वल डिस्टेंस के बारे में बता रहा। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है ना। सपोज ए बी सी डी ये डिस्टेंस है, आपको निकालना है एवरेज
वेलोसिटी विद व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, सब सेम है, डी 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 एस और सब एक्स 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 है, जो भी है, इन दैट केस यू टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम, ये सभी के लिए ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। तो अभी कंसिडर करेंगे कि अपन ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहां से ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, जब डिस्टेंस क्या है उसका सेम है, बट वेलोसिटी में भी डिफर, इसका सपोज वेलोसिटी v1 होगा, इसका वेलोसिटी सपोज कंसिडर करेंगे v2 होगा, दो ही ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, है ना। अच्छा, ये v1 और ये v2, दो ही ऑब्जेक्ट लेंगे, थोड़ा सा समझने को आपको आसान हो जाएगा। डिस्टेंस सपोज इसका क्या है, इक्वल है, दो कंडीशन निकालना है। अभी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट ना, फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, जो भी कंडीशंस में आएगा। अभी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस व्हेन दे आर इन स्ट्रेट लाइन, दैट टाइम द आंसर रिजल्ट विल बी डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो क्या है टोटल, अभी डिस्टेंस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम दैट इज v इंटू टी, टाइम भी सेम लगेगा, है ना। ये d1 क्या है तुम्हारा, ये v1 v2 इंटू टी, तो जब d1 और d1 सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, v1 इंटू टी और v2 इंटू टी। इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा, ये टाइम t1 होगा और ये टाइम सपोज ये t2 होगा। कैसा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट अभी कैसे पाथ पे जाते हो, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, अभी सपोज लेट मी कंसीडर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अपन कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में करें तो क्या आएगा तुम्हारा, डिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा, सपोज अब इसमें तो आपको फिगर पे डिपेंड करेगा, पाथ इक्वल डिस्टेंस कैसा है। अभी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस यानी तुम्हारा खाली पाथ सेम है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या है, अपने को फाइनल डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना पड़ेगा, पर अपन कंसीडर करेंगे इजी वे में, क्योंकि आपको पता नहीं अपने कहाँ है, तो अपन कंसीडर करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करें, आदमी क्या है जो स्ट्रेट लाइन में, ये भी d1 है और ये d1 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपना 2d, ये d और ये d, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम्हारा 2d। टोटल टाइम कितना आएगा आपका यहाँ पर, d1 बाई वी और d2 बाई वी, बराबर है, d बाई v1 प्लस d बाय v2, सही है। टोटल टाइम क्या है तुम्हारे यहां पर, टाइम इक्वल्स टू d बाय v, है ना, तो डिस्टेंस तो सेम है आपका, डिस्टेंस में चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो यहां पर क्या आएगा तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 2d डिवाइडेड बाय v1 प्लस v1 इंटू v2 डिवाइडिंग बाय v2 इंटू d प्लस v1 इंटू d, तो यहां पे 2d कॉमन, यहां से क्या लेंगे, d कॉमन ले लेंगे अपन, v2 प्लस v1 डिवाइडिंग बाय v1 इंटू v2, ये न्यूमर का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर का, तो क्या आएगा 2d इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडिंग बाय d v1 प्लस v2, dd कैंसिल, तो क्या आ गया तुम्हारा एवरेज कितना आ गया तुम्हारा 2 v1 प्लस v2 डिवाइडिंग बाय v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। समझ में आ रहा है क्या, कैसा आ रहा है, हाँ देखिए फिर से बताता हूँ, मैं देखो पहले से बताता हूँ, दिख रहा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखिए अरे देखिए, लेट मी कंसीडर द ऑब्जेक्ट्स विल बी मूविंग विद द डिस्टेंस, ऐसा अरे चलो कोई बात नहीं, इसमें कर लेंगे, करेक्ट कर देंगे उसको, कटिए ना। हाँ देखिए, तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां से मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव हो रहा है यहां से, ये d1 है और ये भी क्या है तुम्हारा d2 है, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब दिया गिवन क्या है तुम्हारा d1 इक्वल्स टू गिवन है ना, इक्वल टाइम्स क्या क्या डिस्टेंस है ना पहले,
कहाँ गया? ये तो ब्लैंक है। चलो ये ले लेंगे। वो डिस्टेंस का कहाँ है? स्लाइड रीड हो गया स्लाइड 7 में। ओके, इक्वल टाइम्स चलो 7 के बाद में, 7 के बाद में नेक्स्ट, 7 के बाद नेक्स्ट कैसे करेंगे? अरे चलो चलो इक्वल टाइम का दिखाता हूँ मैं, बाद में डिस्कस दिखाता हूँ। इक्वल टाइम्स देखेंगे, वो भी होगा आगे, होगा कहीं हिडन हो गया होगा, मिल जाएगा। देखिए, अरे यार, हाँ देखो इक्वल टाइम, देखिए तो अभी क्या बताया उन्होंने, आप लोग टाइम क्या लेना है? इक्वल लेना है, टाइम सेम है। जनरल फॉर्मूला पता है आपको वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा तुम्हारा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी। बाकी कोई लेना देना, सिर्फ क्या बता रहा हूँ, टाइम इक्वल है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा सपोज कंसीडर करो कि ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है तुम्हारा बी पे, और बी से जा रहा है तुम्हारा सी पे। वेलोसिटी अलग हो सकती है पर टाइम उसका सेम है। यहां पे भी टाइम t1 है और यहां पे भी टाइम t1 ही है। यहां पे वेलोसिटी कुछ भी होगी, v1 होगी, यहां पे वेलोसिटी v2, डिस्टेंस भी अलग होगा। स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या करेगा? ज्यादा कवर करेगा। स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा, बराबर है। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी तुम्हारी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पता नहीं आपको, तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस यानी क्या, कितना होता है? v इंटू टी, बराबर। तो इसका स्पीड सपोज v1 होगा और टाइम क्या होगा उसका? t1, v1 इंटू t1 प्लस इसका क्या है? v2 और टाइम t1 सेम है दोनों का, इक्वल टाइम। इसका भी टाइम t1 है और उसका भी टाइम सेम है, डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 है ना, सेम। चलो कोई बात नहीं, t1 और t2 यहां पे अपन लिखेंगे। t1 इक्वल्स टू कितना है? t2। तो इसमें से क्या करता है, मैं t1 कॉमन लेता हूं बिकॉज सेम है, v1 प्लस v2 डिवाइडिंग बाय 2 t1 कैंसिल। तो यहां पे क्या आएगा तुम्हारा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये कंडीशन में तुम्हारी आ गई एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज इक्वल। समझ में आ गया अभी ये? व्हेन द टाइम इज इक्वल, वो भी होगा आगे, इधर उधर होगा। फिर से आया बात, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको, बोलिए कहां से? ये ना, यहां से, अच्छा हाँ, अच्छा ये समझ में आ गया आपको? क्या बोल रहे थे, आपका डाउट क्या था? हाँ v1 प्लस, हाँ यहां पे क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहां से यहां तक है, यहां से तक है, हाँ ये यहां से यहां तक बी तक, ए से लेके सी तक जा रहे हैं आप। वो कंडीशन में आपकी एवरेज वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी कम होगी, बाद में की ज्यादा होगी, तो वो टाइम पे डिस्टेंस तुम्हारा होगा। तो जब टाइम इक्वल जाए तो ये फॉर्मूले से आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 व्हेन द टाइम इज इक्वल। ओके, आइए एग्जांपल्स में आइए जब और क्लियर हो जाएंगे आइडिया आपके। देखिए देखो अभी क्या है, इंसेक्ट्स मूव्स अलोंग द sides of the walls, dimensions of given 12 by 5. The startings from one corner and reaches at the diagonally opposite corners, and if the insect takes 2 seconds from its motion, then find the ratios of average speed and average velocity. देखिए तो इंसेक्ट क्या कर रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा बॉक्स है, बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया उसने? 12 और 5। समझ में आया क्वेश्चन? ये लेट यू कंसीडर द बॉक्स ए बी सी और डी। तो अब क्या करना है आपको? स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर एंड रीचेस एट द डायगोनली अपोजिट, यहां से चालू किया उसने सपोज, और यहां पे रुक गया है, सपोज सी पे रुक गया है। एंड इफ द इंसेक्ट टेक्स 2 सेकंड, टाइम कितना ले रहा है इंसेक्ट्स? 2 सेकंड। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड डिवाइडिंग बाय एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी?
टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम. डिस्टेंस कितना है? 12 प्लस 7 कितना हो गया? 17/2. करेक्ट है. होगा स्पीड. अभी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? 13. सही है ना. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना. तो 13 डिवाइडेड बाय 2. तो आपको निकालना है दोनों का रेशियो. द एवरेज स्पीड, इसको दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं. 2 2 कैंसिल. तो रेशियो कितना आएगा? 17:13. समझे? हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया. 13 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. समझ में आ गया है? देखिए नेक्स्ट. द initial odometer readings of the cab is 369 kilometers and travels 2 hours, and final odometer readings shows 469 kilometers. Then approximately the average speed of the cab. आपका एवरेज स्पीड निकालना है. कैब की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय. तो अभी डिस्टेंस क्या है यार तुम्हारा? ओडोमीटर क्या कर रहा है तुम्हारा? डिस्टेंस 469 माइनस 369. ये डिस्टेंस हो गया. हाँ, और टाइम कितना दिया उसने? 2 आवर्स. तो 2 आवर्स ये कितना है तुम्हारा? केएम में. तो कितना आ गया? 50 आ रहा है. सब्ट्रैक्शन 100 आ रहा है. 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर. सही में आ रहा है? हाँ. द नेक्स्ट वन देखो. A car is moving with the starting lines covers a certain distance with a speed of 30 km per hour, and next half the distance with the speed of 50 km per hour. Then find the average speed of the car. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कार क्या कर रहा है तुम्हारा? एक जगह से जा रहा है. सपोज कार यहां पे था, पहले यहां से यहां पे गया और यहां से यहां पे गया. Starting lines covers a certain distance of the speed of suppose 30 km per hour. ये डिस्टेंस था उसका 30 km per hour था. एंड द नेक्स्ट हाफ एंड हाफ ये डिस्टेंस सेम है. इसका मतलब देखो, कार मूविंग इन द स्टार्टिंग लाइन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड गिवन, एंड द नेक्स्ट हाफ द डिस्टेंस विथ 50 km/h. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. आपको एवरेज स्पीड निकालना है. डिस्टेंस सेम दिया. ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? x है, और ये भी डिस्टेंस कितना है? सेम है ना. हाफ डिस्टेंस बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे नेक्स्ट हाफ पहला गया, फिर बचा हुआ आधा वो स्पीड से गया. क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भी क्या करना है आपको? एवरेज स्पीड निकालना है. तो क्या है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. टोटल कितना गया आपका? ये x और x, सपोज 2x, सपोज तो 2d लो. हाँ 80 क्या? नहीं, डिस्टेंस नहीं ना, वो क्या है अपनी स्पीड है. वेलोसिटी क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम. तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? v इंटू टी. बराबर. डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा? 30. टोटल डिस्टेंस हो गया 2d. x प्लस x टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम कितना होगा आपका? टाइम इक्वल्स टू डी बाई वी. बराबर है. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? डी बाई वी. तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? x डिवाइडिंग बाई वी कितना है तुम्हारा? 30. बराबर है. x डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 50. सिंप्लीफाई करो. ऊपर कितना हो गया तुम्हारा? 2x डिवाइडिंग बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 50. 50x प्लस 30x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, है ना. ये क्या? 50x इंटू 30x. ऊपर का एज इट इज 2x 80x, और मल्टीप्लाई में जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. x 40 ये कैंसिल. तो 150 बाय 4 यानी कितना गया तुम्हारा? 75 बाय 2. 75 और 37.5 क्या? हाँ
क्या बोलिए? 150 डिवाइडिंग बाय 2 है ना, 2 से किया तो 37 पॉइंट बराबर है किलोमीटर पर आवर, सॉरी km पर। समझ में आ रहा है? फिर से बताना है, मैंने समझा क्या? देखिए फिर से देखो, फॉर्मूला समझा क्या? कहां से बताना है? फॉर्मूला से बताओ। ठीक है, बहुत ही टाइम पास होता है इसमें। देखो देखिए अभी क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? सपोज एक्स और एक्स, एक्स प्लस एक्स, सही है। टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है इसको? अभी डिस्टेंस, स्पीड कम है, डिस्टेंस उतना जाना है तो टाइम ज्यादा लगेगा इसको, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, बराबर है। टोटल टाइम क्या है? t1 कितना होगा इसका? डिस्टेंस डिवाइड बाय v, डिस्टेंस तो x है, इसकी स्पीड कितना हो गई तुम्हारी? 30। टाइम कितना होगा? बराबर है। नेक्स्ट बोलो, डिस्टेंस सेम है ना, x1 प्लस x2 करो, बिकॉज x द डिस्टेंस हाफ है। कैसे भी करो आप, x1, ये x1 है और x2 दोनों सेम है, इक्वल डिस्टेंस बताया उसने। ये पहले गया, फिर हाफ डिस्टेंस उतने में ही गया वो, समझ में आ रहा है क्या? तो फिर कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे? 2x, 30 मल्टीप्लाई बाय 50, 80x, ये मल्टीप्लाई कर दो, 2x मल्टीप्लाई बाय 80x, डिस्टेंस कैंसल, 2 40 0 और 0 कैंसल, 2 से करेंगे तो 2 और कितना आ गया? 75, 2 से करते और कितना आ गया तुम्हारा? 37.5। समझ में आया? किलोमीटर पर आवर, इजी है ना? देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, ऑब्जेक्ट्स मूव्स थ्रू 10 मिनट्स इन 10 मीटर इन 2 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्या जा रहा है ऑब्जेक्ट तुम्हारा? यहां से 10 मीटर में जा रहा है, यहाँ पे 10 मीटर जा रहा है और फिर बाद में यहाँ पे भी 10 मीटर है, डिस्टेंस सेम है, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है? 2 मिनट ले रहा है, यहाँ पे कितना ले रहा है? 3 मिनट ले रहा है। तो वो कंडीशन में क्या निकालने का? वो एवरेज स्पीड निकालना है, समझ में आ गया? वो कंडीशन निकालना है एवरेज स्पीड। तो स्पीड के लिए वही सेम फॉर्मूला, वही कौन सा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसमें? 10 + 10 20। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 3 4 मीटर पर मिनट। क्या बोले? बोलेगा उन्होंने वैसा करना है, कर सकते हैं आप, नहीं बोले तो छोड़ दो। तो 4 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकंड है ना, 1 मिनट यानी कितने सेकंड होते तुम्हारे? 60। सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आंसर, है ना, 1/15। ये भी लिख सकते हैं, या तो फिर जो दिया उसमें भी लिखे तो चलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? अब्दुल वाइल ड्राइविंग द स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप्स टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन नेक्स्ट टर्न्स ट्रिप्स अलोंग द सेम रूट। देखिए क्या कर रहा है, देखो अब्दुल वाइल ड्राइविंग द स्कूल, यहां से जा रहा है, उन्हें स्कूल जा रहा है, फिर से स्कूल से क्या कर रहा है? वो वही जगह पर है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग द स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप्स टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जाते समय का स्पीड कितना है उसका? along the same route सेम है, there is a less traffic and the average speed is 40 kilometer per। what is the average speed about the trip? सेम वही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालना, इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या तो फिर सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला? सेम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय
आपको फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट v1 v2 डिवाइडिंग बाय v1 प्लस v2 कर सकते, 2 v1 v2 डिवाइडिंग बाय v1 प्लस v2 भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो फिर कर दो, आदत डाल दो। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, डिस्टेंस सेम है, तो d प्लस d। टाइम कितना है तुम्हारा यहाँ पे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय स्पीड, तो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय 20 और d डिवाइडेड बाय 40, सही है। फिर कितना आएगा ऊपर, 2d डिवाइडेड बाय 4 टू जा 800 और 60d, सही है। 2d मल्टीप्लाइड बाय 800 डिवाइडेड बाय 60 dd कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 3 दैट इज 80 बाय 3, यूनिट क्या होगा उसका, किलोमीटर पर आवर। सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये उसका होगा आंसर। समझ में आ रहा है, कहां से बताना बेटा, कैलकुलेशन बताना है, फॉर्मूला समझ में आ गया। देखिए तो यहां तक समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये डी और डी कितना हो गया, 2d है ना। टोटल टाइम क्या है, d डिवाइडेड बाय 20, जाने का टाइम क्या है तुम्हारा, d डिवाइडेड बाय टाइम क्या है तुम्हारा, टाइम यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, बराबर। टाइम क्या हो तुम्हारा, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय स्पीड, तो यहाँ पे क्या होगा टाइम, d डिवाइडेड बाय 20 जाने के लिए, आने के लिए d डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ पे दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 14 इंटू 20 कितना हो गया, फिर 14 इंटू डी प्लस 20 इंटू डी, 40 प्लस 20, समझ में आ गए, और 20 डी एज इट इज, तो फिर 20 डी और डिनोमिनेटर में है सो मल्टीप्लाई में जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 60 डी, समझा अभी। डी और डी जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो कितना आ रहा तुम्हारा 160 डिवाइडेड बाय 6, 8 टू 16, अरे वही आता है, वही अभी डिवाइड 80 बाय 3, यहां पे डिवाइड कर दो, है ना, समझ में आ गया। और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। देखिए अभी नेक्स्ट वाला, if a car covers 2/5 of the total distance with the velocity v1 and 3/5 the distance of velocity v2, then find average speed। तो अभी क्या करना है आपको, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए 2/5 यानी यहाँ पे करेंगे अपन, कंसिडर करेंगे कि ये हिस्से करेंगे इसके 1 2 3 4 और 5, तो इतना डिस्टेंस क्या कर रहा है, 2/5 यानी कितना हो गया, 2/5 हो गया, बराबर है। और ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, 3/5, 2/5 टोटल डिस्टेंस, एंड v1 स्पीड इज द v1, इसके स्पीड से क्या जा रहा है तुम्हारा, v1 से जा रहा है, और 3/5 किससे जा रहा है आपका, v2 से जा रहा है ना। तो देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड, सेम फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 2/5 प्लस 3/5 यानी 1, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2/5 प्लस टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालोगे आप, टाइम का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू, पता है आपको, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 2/5 डिवाइडेड बाय v1, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम डिवाइडेड बाय v1, सेम, प्लस 3/5 वेलोसिटी कितनी आएगी उसकी, v2। सिंप्लीफाई करो इसको, ऊपर कितना है न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाय 25 v1 v2 डिवाइडेड बाय 10 v2 प्लस 15 v1, इसको ऊपर लेके जाओ, 25 v1 v2 डिवाइडेड बाय 10 v2 15 v1, तो ये होगा आपका उसकी एवरेज स्पीड। कहां से नहीं समझा फॉर्मूला, ये नहीं समझा, यहां से पहले से लिखा था। फॉर्मूला याद है आपको, टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय
टोटल टाइम फॉर्मूला वही है, हमेशा के लिए फॉर्मूला दिखना भूलना नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा आपका 2/5 प्लस, करेक्ट। अभी डिस्टेंस, अभी टाइम क्या होगा तुम्हारा, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी। तो टाइम t1 क्या आ गया, टाइम t1 होगा, मैं यहाँ पे चलो टाइम t1 लिखता हूं प्लस टाइम t2, आपको समझ में आसान रहेगा। ये कितना हो गया तुम्हारा 1, न्यूमरेटर में आ गया। 5/5 कितना हो गया 1। अभी टाइम t1 कितना है तुम्हारा, डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय v1, डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 2/5 डिवाइड बाय v1, ऐसा करता हूं आपको समझ में आसान हो जाएगा, प्लस 3/5 डिवाइड बाय v2। आप समझ में आ रहे हैं, देखो आप क्या करेंगे, इसको 1 है ना, ये 2/5 आप ऐसा लिखते हो v1 प्लस 3/5 ऐसा लिखो आप v2। डिवीजन को मैंने इस तरह से लिखा है ना, कुछ नहीं आया तो क्या होता है नीचे 1 होता है, बराबर। तो फिर यहां पे लिखता हूं मैं अभी 1 डिवाइड बाय 2/5, अभी यहां पे डिवीजन में उल्टा करने के बाद क्या हो गया 1/v1 हो जाएगा, प्लस 3/5 इंटू 1/v2 हो जाएगा, है ना। तो अभी सिंपली इसको 1 को एनालिसिस करो, अभी सिंपल मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 v1 बोलो सेम है क्या, वेलोसिटी अलग अलग दिया ना, उसकी वेलोसिटी अलग दिया ना, है ना। तो ये v1 है और ये क्या है v2, तो इसकी एडिशन होगी क्या, नहीं होगी। तो यहां पे कितना हो गया तुम्हारा 25 v1 v2, और यहां पे 5 टू 10 v2 प्लस 5 3 15 v1, बोलिए हाँ, ये 5 इंटू 5 कितना था बेटा, है ना। तो अब इसका रेशियो बोलिए ऊपर लिख दो, तो कितना हो गया तुम्हारा 25 v1 v2 डिवाइड बाय 10 v2 प्लस 15 v1, ये उसका आंसर होगा, समझे, ये उसका आंसर होगा। फोन तो फिर से क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस नहीं है, देखो उसके बाद में देखना है अपने को यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहां से जा रहा है, डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है। द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म दोनों में से एक अनइक्वल है, इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म। यहां पे सपोज डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग है। जैसे कि एग्जांपल के लिए होता है, ये अभी समझो यहां से आपको जाना है 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाने को आपको 30 मिनट लग रहे, नेक्स्ट 5 किलोमीटर जाने को 30 मिनट लग रहे, नेक्स्ट 5 किलोमीटर जाने को 30 मिनट लग रहे। तो ये क्या होगा तुम्हारा यूनिफॉर्म। अभी नॉन यूनिफॉर्म की मतलब क्या है, यहां से डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 5 किलोमीटर जाने को 30 मिनट लग रहे, सेम डिस्टेंस 5 किलोमीटर लेकिन तुम फास्ट गए, 25 सेकंड में गए, 25 मिनट्स में गए, यहाँ पे टाइम 30 था, यहाँ पे टाइम अलग है। ये क्या तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या होगा इसको नॉन यूनिफॉर्म। दोनों में से एक, अदरवाइज इक्वल टाइम इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, दोनों में से एक अनइक्वल हो गया तो तुम्हारा क्या नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म में दोनों भी सेम आएंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया डेफिनेशन। और ग्राफ के बारे में देखते हो आप, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा आप निकालते हैं, तो ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो इसे ग्राफ के बारे में सोचते तो आप ग्राफ करेंगे, यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा यार। तो ग्राफ इसका क्या आएगा, हमेशा कैसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो समझने कि आपको यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या है तुम्हारा, नॉन लीनियर आएगा, कैसे भी आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये क्या होगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म। सिर्फ इतना याद रखो, यूनिफॉर्म में ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ इज अ नॉन लीनियर। ओके, यहां पे दिखाने को यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बताए यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन का। ये ऐसा भी चलेगा,
या ये तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन, डिस्टेंस बाय टाइम आ रहा है, क्या तुम्हारा वेलोसिटी आ रहा है, ये भी क्या है तुम्हारा वेलोसिटी आ रहा है। ये स्पीड तुम्हारी बढ़ रही है, जब स्पीड कम होगी जब क्या होगा तुम्हारा ग्राफ इस तरह से आएगा, रॉन्ग नहीं, नीचे जा रहा है, स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लगा रहे, जगह पे रुके आप तो ग्राफ कैसा आएगा आपका स्ट्रेट लाइन, बट इन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट वन। यहां पे स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है ना, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये डिपेंड करेगा। इसमें क्या ग्राफ इज नॉन लीनियर, इसमें ग्राफ क्या आ गया तुम्हारा लीनियर। समझ में आ गया? यहां पे एग्जांपल्स बता, देखो यहां पे 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। तो यहां पे बताया द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेल। गाड़ी चलाते हो ना आप, गाड़ी एक्सेलरेट करते हो, इसका मतलब क्या करते हो आप, स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, स्पीड चेंज करते हैं एक्चुअली, पर जो स्पीड है उसको स्पीड चेंज करते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, उसके अपोजिट, स्पीड कम करना। लेकिन जनरली एक्सेलरेशन यानी क्या है, अपन बोलते हैं चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो ये भाग रहा है आदमी, भागते भागते स्पीड अप हो गया, स्पीड बढ़ाया ही इसने, तो इसकी क्या हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा ये पॉजिटिव। कब पॉजिटिव, जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सी तुम्हारी v इज ग्रेटर देन u। फाइनल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, जब ग्रेटर होगी जब उसे क्या कहोगे आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पे देखो एक्सेलरेशन भी, अभी आप ब्रेक लगा रहे हो, पहले की स्पीड ज्यादा थी, फिर कम हो गया कम हो गया कम हो गया, इसका मतलब क्या है तुम्हारा यहां पर v इज लेस देन u, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक लगा रहे, डी एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नाम क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एज वेल एज रिटार्डेशन। ओके, और यहां पे क्या और तुम्हारा ऑलवेज कंटिन्यूस चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही का मतलब वो क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन रैंडम है, एक्सेलरेटिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। अब यूनिफॉर्म मोशन, सपोज यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी सेम है, उसे क्या कहोगे आप जीरो एक्सेलरेशन। इफ यहां पे क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होगा तुम्हारा v माइनस यू बाय टी। तो ये कंडीशन में क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव है, ये कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव। अब ये कंडीशन में एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो आएगा, v माइनस यू बाय टी व्हेन v इक्वल्स टू u। v और u जब सेम होगा तो क्या दोनों का डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा जीरो, और वो कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा जीरो, है ना। इफ दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो। समझ में आ गए? 3 टाइप के एक्सेलरेशन कौन से हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, है ना, जीरो एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब फाइनल वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है ना, जब क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। और जब फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, घट रही है, जब क्या आएगा तुम्हारा नेगेटिव। और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है आपका, एज इट इज चल रही है, वो क्या आएगा तुम्हारा जीरो एक्सेलरेशन। यहां पे देखो एक्सेलरेशन, यहां पे देखिए पहले की स्पीड कितनी थी तुम्हारी यहाँ पे गाड़ी की 40, है ना, इनिशियल ये थी, बाद में की स्पीड क्या हो गई 70। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा ये तुम्हारा, एक्सेलरेशन कौन सा हुआ पॉजिटिव। वेरी गुड, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव, है ना। क्या निकालते हैं अपन एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी 70 माइनस 40 डिवाइड बाय 1 आवर, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका 30 मीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। यहां पे देखिए पहले 70 था, बाद में 40, स्पीड कम हो रही है, ये इनिशियल क्या है ये है, और फाइनल क्या है ये, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये क्या है तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है स्पीड है, स्पीड आपको दिखने को सेम दिख रही है आपको, यहाँ पे टर्न मारा चेंज हो गई, तो यहाँ पे स्पीड क्या है तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे आ रही थी और अभी यहाँ पे जा रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना, ये कंडीशन में। तो ये कंडीशन में क्या है एक्सेलरेशन तुम्हारा, आपको लगता होगा यहाँ पे सर यहाँ पे 40 किलोमीटर, यहाँ पे 40 किलोमीटर है ना, पर कैसे निकालोगे अपन इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, ये साइड को अपन कंसीडर करना है नेगेटिव, और ये साइड को कंसीडर करना है कि आपको पॉजिटिव, एक डायरेक्शन होता है ना। तो एक्सेलरेशन के इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस
फाइनल कितना है आपका 40, इनिशियल कितना है -40, टाइम कितना है तुम्हारा 1 आवर है ना, आर 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 का स्क्वायर। तो एक कंडीशन में कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना हो गया 80 किलोमीटर मिनट है क्या, सॉरी मिनट पर मीटर क्या मिली है, चलो कोई भी होगा, मिनट आर क्या, मिनट आर नहीं रहता, मिली कुछ तो होगा, मीटर पर आवर होगा, माइल्स पर आवर होगा, राइट माइल्स पर आवर होगा, माइल्स पर आर स्क्वायर है ना, माइल्स पर आर स्क्वायर होगा, माइल्स पर आर स्क्वायर। समझ में आ गया क्या पूरा हो। हाँ तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या था 70 थी, 40 थी स्पीड इनिशियल, फाइनल कितना होगा आपका 70। तो कैसा निकालोगे यहां पे बोलिए, तो वो कंडीशन में क्या आएगा एक्सेलरेशन, यहां की स्पीड को क्या लेने का आपको नेगेटिव, यहां पे लेना है पॉजिटिव। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है आपकी 70 माइनस और -40 डिवाइड बाय टाइम 1 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया तुम्हारा 110 माइल पर आर का स्क्वायर। समझे, हाँ इस तरह से निकालना है। अभी क्वेश्चन देखिए, अ बाइसिकल इंक्रीजेस वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, पहली स्पीड कम है बाद में की स्पीड, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इन 6 सेकंड अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60, बस की स्पीड कम हो रही है, बाइक की स्पीड बढ़ रही है। इफ आई फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बस एंड कार, तो बस का भी एक्सेलरेशन निकालना है और कार का भी निकालना है ना, बाइसिकल का बाइसिकल का बस, बाइसिकल एंड बस। कैसा निकालोगे, पहले निकालेंगे बाइसिकल का निकालेंगे। हाँ तो बाइसिकल का एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 15 माइनस 10 डिवाइड बाय टाइम कितना है, देखो यहां पे चेंज करना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ेगा, यहां पे किलोमीटर पर आ रहे हैं, यहां पे टाइम दिया है सेकंड में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, या तो फिर टाइम को करो आवर्स में करो, कैसे भी करो। तो यहाँ पे क्या किलोमीटर पर सेकंड दिया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई बाय 5/18 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5/18 डिवाइड बाय 6, सही है, मीटर पर सेकंड हो गया अभी 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया तुम्हारा यहां पर, 5/18 कॉमन लेता हूं मैं, 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 6 यानी 25 डिवाइडिंग बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये आंसर आएगा आपका 25 डिवाइडिंग बाय, नहीं रे 108 नहीं आता, 4 चले 2 7 7 8 84 क्या, 144 आ रहा है, कैसा क्या 25/84 आ रहा है शायद, 25/84 कौन सा रे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 25 हो गया, 18 इंटू 6 ना, 18 इंटू 6 कितना होता है 8 48, करेक्ट है 8 48, हाँ 108। क्या यूनिट किसका आएगा, मीटर पर सेकंड, बराबर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सा करना है आपको, बस का, बस में क्या दिया उन्होंने 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, फाइनल क्या है आपका 60 है, 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 डिवाइड बाय कितना है 5, करेक्ट है, 5/18 कॉमन लो, -20 डिवाइड बाय 5, बराबर 60 माइनस 80 कितना हो गया -20, तो फिर -100 डिवाइडिंग बाय 18 इंटू 5,
18 5 90 क्या, तो -10/9, तो क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या माइनस है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है ना, समझ में आ गया। द नेक्स्ट वन, ट्रॉली while going down inclined plane has an acceleration for 20 centimeter second square. What is the velocity 3 seconds after it starts? क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या है, ट्रॉली है और ट्रॉली while going down, यहां से ट्रॉली आपकी जा रही है, यहां से मूव रही है ट्रॉली, ऐसे नीचे जा रही है, ट्रॉली मूविंग डाउन प्लेन, इंक्लाइन एक्सेलरेशन कितना हुआ, ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना है, ए कितना दिया आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी निकालना है, आफ्टर स्टार्ट्स, इनिशियली क्या होगी तुम्हारी, स्टार्ट हो इनिशियली रेस्ट पे थी, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, टाइम कितना दिया उसको 3 सेकंड, 7 नहीं, क्वेश्चन मार्क है वो, ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। अब a कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या करना पड़ेगा आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना होगा, हाँ तो चलो ऐसे सेंटीमीटर में निकाल देंगे अपन, चलो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा आंसर। तो एक्सेलरेशन कितना दिया आपको 2, वेलोसिटी कितना दिया आपको, पता नहीं, इनिशियल क्या है तुम्हारी, विला निकालना है, इनिशियल 0 है, 5 और टाइम कितना दिया आपको 3 2 जा v, तो v कितना है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, समझे, सेंटीमीटर पर क्या हो गया रे, वेलोसिटी स्क्वायर में आएंगे बेटा, नहीं वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं, एक्सेलरेशन विल बी ना स्क्वायर में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल वेलोसिटी कितना दिया आपको, एंड मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन दिया माइनस रिटार्डेशन दिया, देखो एक्सेलरेशन कितना दिया आपको माइनस, हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव देता है उसका मतलब क्या होता है, वो रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट्स विथ वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया आपकी, क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया आपको 25, विथ मूव्स विद एन एक्सेलरेशन -2, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बाइसिकल, तो टाइम निकालना है आपको, क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालना है, स्टॉप हो रही है इसका मतलब क्या है, फाइनली क्या है, तुम्हारी गाड़ी रुक जा रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, समझा गया फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल आफ्टर, तो वेलोसिटी निकालना है कब, जब टाइम क्या होगा तुम्हारा 8 सेकंड होगा। 2 क्वेश्चन दिया इसने, पहला आंसर निकालेंगे अपन। एक्सेलरेशन कितना दिया उसने अपने को, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस पे 20, बाद में रुक जा रही गाड़ी, फाइनली स्टॉप, बराबर है। टाइम कितना है पता नहीं आपको, एक्शन कितना है -2 है ना, सिर्फ अपन डायरेक्शन के लिए लेते हैं, तो कितना होगा तुम्हारा फिर टाइम -2t इक्वल टू 24, सर टाइम माइनस में नहीं आता, जस्ट वी आर शोइंग द नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल के, तो टाइम कितना आ गया आपका 12 सेकंड, टाइम माइनस नहीं होता है, सिर्फ माइनस इंडिकेट साइन क्या करेगा, तुम्हारा डायरेक्शन दिखा रहा, समझ में आ गया। तो यहां पे टाइम कितना आ गया, पहले का आंसर कितना आ गया तुम्हारा 12 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल आफ्टर 8 सेकंड, फॉर्मूला क्या है अपना, a इक्वल्स v माइनस यू बाई टी, बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना दिया आपने दोनों ने 2 लिख दिया मैंने यहां पर 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 24, फाइनल वेलोसिटी क्या है, रुक जा रहे हैं बाद में, स्टॉप्स का मतलब क्या है, फाइनली क्या है, गाड़ी तुम्हारी रुक गई है, टाइम निकालना है, तो फिर 2t इक्वल्स टू 24,
टी इक्वल टू कितना आ गया 24 डिवाइडिंग बाय 2 12 सेकंड। समझे? अभी नेक्स्ट देखो, अरे यार, हाँ थोड़ा 2 मिनट देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी v, इसमें क्या करना है आपको, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल आफ्टर 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद में की वेलोसिटी आपको निकालना है। तो कैसा करेंगे फॉर्मूले का अपन, सेम फॉर्मूला, आपको एक्सप्रेशन पता है, फॉर्मूले में क्या करना है आपको, v इक्वल टू यू प्लस 80 है ना। तो इनिशियली क्या था आपका 24 थी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस एक्शन कितना -2, टाइम कितना था 8, तो कितना 24 माइनस 16, तो कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? सॉल्व कर लो। तो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस भी है, थोड़ा सा फटाफट जाएंगे अपन। यहाँ पे दिया है आपका ग्राफ, द टाइम वी एंड टी ग्राफ फिगर्स कैन बी इंटरफेस द ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे ग्राफ पे क्या बता रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड बढ़ रही है क्या आपकी, टाइम कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन पे है क्या, नहीं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट की कंडीशन बोलते यूनिफॉर्म मोशन में, एक सेम रेस्ट पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा। और यूनिफॉर्म तो यहाँ पे दिया है, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म तो है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, ग्राफ यूनिफॉर्म में है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, ग्राफ इट इज ना यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म में कांस्टेंट मोशन में ग्राफ स्पीड जा रही है, रेस में बोलता कांस्टेंट स्पीड में जा रही है। चलो यूनिफॉर्म मोशन एग्जैक्ट आंसर इसका, इन यूनिफॉर्म मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है क्या, नहीं, सिर्फ मोशन उसका यूनिफॉर्म। लास्ट कर देंगे, फिर होमवर्क्स देखेंगे आपके बाद में। बहुत क्वेश्चन 40 तक है, इतना ले लेंगे, फिर बाद में फिर ले लेंगे, एक दिन और ले लेंगे, नेक्स्ट दिन ले लेंगे क्या, चलो कोई बात नहीं, और एक दिन रिवाइज करेंगे अपन इसको टॉपिक को। ये फास्ट कर देंगे, एक खत्म कर देंगे, एक लास्ट नको, चलो कोई बात नहीं, तो फिर इसको बाद में ले लेंगे। अभी क्या करो आप, सुनो, तो ये माइक चल रहा नहीं पता है इसके बारे में, ये चल रहा है क्या, लेकिन ये चल रहा है क्या, लेकिन मैम सुनो